Lecture 6 of central orbit, we will discuss aerial velocity of central orbit. First, we will study the concept of linear velocity. What is linear velocity? Suppose at any time t, the particle is at point P, and after some time, the particle is at point Q. So the distance it travel in this time is from P to Q, that is delta S. So what is the linear velocity here? Linear velocity is the linear displacement divided by time. So linear velocity is linear displacement over time taken. So it is ds by dt. Whereas in the aerial velocity, the aerial velocity is the area covered, that is shown in this by this green color. The area covered by the particle at any time in any time t is called aerial velocity. So aerial velocity is rate of change of area with respect to time. When a particle moves along the curve, the rate of change of area swept by the particle is known as the aerial velocity. So इस केस में aerial velocity क्या होगी? dA, that is change in this area. ये आपके पास area है जो इसने travel किया है. This dA, area covered, upon the time taken is dt. So this is called aerial velocity. So अब एरियल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है सेंट्रल ऑर्बिट के लिए? अब यहाँ पे जो एरियल वेलोसिटी यहाँ पे भी कवर की, जब वो P से Q तक आया तो एरिया कितना कवर हुआ? ये एरिया स्वेप्ट हुआ इसका. दिस इज द एरिया कवर्ड. एक तो एरियल वेलोसिटी ये है. दूसरा जो हमने यहाँ रेड से एरिया शो किया हुआ है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम R to S, तो ये वाला भी जो एरिया है, दिस इज ऑल्सो एरिया कवर्ड बाय टाइम. सो एरियल वेलोसिटी इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंट होगी या सेम होगी? सो इन केस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. जो चाहे वो ये वाला एरिया स्वेप्ट कर रहा है, चाहे ये एरिया स्वेप्ट कर रहा है, चाहे ये, तो जो एरियल वेलोसिटी है इन द सेंट्रल ऑर्बिट क्या रहने वाली होती है? कांस्टेंट रहती है. सो इसी को हम प्रूव करेंगे कि जो एरियल वेलोसिटी है of central orbit is always constant. So next article is aerial velocity f of an orbit. So we will prove that in every central orbit the aerial velocity is constant. So let us take the particle be at position P at any time t, having radius vector r, O be the fixed point, or you can say O is the pole. तो आपके पास OX is the initial line. So P, R, theta are the polar coordinates. After some time t, it will be at position Q. तो जब ये position Q पे जाएगा तो R भी change होगा. R vector will change to R plus delta R. और क्या change होगा? थीटा भी change हो जाएगा. थीटा will become थीटा plus delta थीटा. तो Q के coordinates क्या आ जाएंगे? R plus delta R और थीटा plus delta थीटा. अब यहाँ पे ये जो arc पार्टिकल ने कवर की, लेट दिस आर्क बी डेल्टा एस. और जो टाइम यहाँ पे अगर आपके पास टाइम टी था तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया? टी प्लस डेल्टा टी. तो कितने टाइम में ये आर्क कवर की उसने? डेल्टा टी टाइम में. Clear? So the particle, as the particle moves along the curve PQ, let it describe the arc PQ is delta S in times delta T. So let the position at point P is r theta as we have discussed, and Q is at r plus delta r and theta plus delta theta at any time t plus delta t. This is all we have discussed. Let OP is r, OP is r, and OQ is r plus delta r. POQ, angle POQ, this angle POQ, what about this angle PO and Q? ये आपके पास थीटा है. This angle is theta. This angle is theta plus delta theta. So what about this angle? This angle is delta theta only. So we have angle POQ is delta theta. अगर हम इस ट्राइंगल का POQ, इसका हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. अब ये ट्राइंगल कब होगा?
जब ये आर्क जो है, अगर हम इसको ले लें कि ये इन वेरी स्मॉल टाइम टी, व्हेन स्मॉल टाइम, अगर हम टाइम स्मॉल ले लें, टाइम स्मॉल मतलब डेल्टा टी अगर अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो आर्क है आपके पास, ये आर्क आपको क्या दिखने लगेगी, स्ट्रेट लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। तो जैसे ही ये स्मॉल टाइम के लिए स्ट्रेट आर्क आपको दिखेगी, तो ये आपको क्या दिखना शुरू हो जाएगा, ये आपको ट्राइंगल दिखना शुरू हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल पी ओ क्यू फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, जब ये बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, डेल्टा टाइम टी अगर हम बहुत स्मॉल ले लें, तो ये जो आर्क है ये आपको क्या दिखेगी, स्ट्रेट लाइन की तरह लगेगी, और ये पी ओ क्यू बन जाएगा एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हम लें, तो एरिया इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा हम लेना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ एडजॉइनिंग साइड, जिसके बीच में, अब ये जो थीटा था, बीच वाला थीटा, ये डेल्टा थीटा था, इसकी एडजॉइनिंग साइड्स कौन सी हैं, पी ओ या ओ पी कह लो, ओ क्यू, और एंगल कितना था, डेल्टा थीटा, डेट इज साइन ऑफ एंगल पी ओ क्यू। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इन टर्म्स ऑफ एडजॉइनिंग साइड्स with angle, sign of the angle between those sides. So this is what we have written. Area of triangle POQ is half OP delta OQ sine of angle POQ, which is delta theta. So as we have discussed, when Q is very close to P, the sector POQ is nearly equal to the triangle POQ. So what is rate of change of sectorial area? This is aerial velocity. So हमारी aerial velocity क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट सेक्टोरियल एरिया। सेक्टोरियल एरिया आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेक्टोरियल एरिया कौन सा बना, ट्राइंगल पी ओ क्यू का एरिया। सो ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या है आपके पास, उसका एरिया हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया था, दिस इज हाफ आर प्लस डेल्टा आर साइन थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम delta t approaches 0 as we have discussed. So when delta t is approaching 0, delta theta is also very small. So let delta theta is very very small. When delta theta is very very small, sin delta theta will become only delta theta. And delta theta upon delta t, when limit delta t approaches 0, it will become a derivative d theta upon dt. So what will we get? We'll get aerial velocity is equal to half r square d theta upon dt, which is equal to constant, let us say h by 2. So rate of change of sectorial area is constant and it is always equal to h by 2. Students, one thing left, or you can say one thing more. Here you have r square d theta upon dt, which we have used as h. So ये r square d theta by dt constant कहाँ से आया? You will refer to this with the differential equation of central orbit in polar form lecture, जहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ लिखी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ट्रांसवर्स मोशन, वहाँ हमारे पास क्या आ गया था, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी टी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन जो थी वो ज़ीरो आ गई थी, बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हमने जब वो किया था, आर्टिकल किया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरह से लिखी थी, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन लिखी थी, एक इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग दी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, दैट इज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो वहाँ पे जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमने रेडियल एक्सेलरेशन ली थी, वो क्या ली, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ली थी, वो क्या ली थी, 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर
डी थीटा अपॉन डी टी, उसको हमने ज़ीरो लिया था क्योंकि कोई भी फोर्स कहाँ नहीं एक्ट कर रहा था, अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो हमारे पास वहाँ से क्या आ गया था, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था तो हमारे पास आ गया था आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू एच। ये एच हमने वहाँ से लिया है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, h by 2 कांस्टेंट विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एरियल वेलोसिटी किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो लेट अस नाउ फाइंड एरियल वेलोसिटी इन पेडल कोऑर्डिनेट्स। सो पेडल कोऑर्डिनेट्स में हम क्या चीज इन्वॉल्व करेंगे, हम करेंगे इन्वॉल्व परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑन द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द कर्व। सो ये कर्व है आपके पास पी क्यू, हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट पे हमने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको हमने कहा पेडल कोऑर्डिनेट पी, दिस इज पी। क्लियर। सो आपके पास यही हमने डायग्राम फिर से देखा, तो दिस इज ओ पी सेम एज आर थीटा, ओ क्यू इज आर प्लस डेल्टा आर एंड थीटा प्लस डेल्टा आर। इसी तरह ओ पी अगर आर है तो ओ क्यू क्या आ जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, सेम आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज थीटा प्लस डेल्टा थीटा, सिर्फ क्या इंट्रोड्यूस हुआ, ओ से एम परपेंडिकुलर कहाँ पे, टेंजेंट पे, विच इज ड्रॉन एट पॉइंट पी ऑन द curve. So it is tangent at point P. So let OM is small p. So what is now sectorial area POQ? अब POQ का हमने sectorial area हम किस तरह से लेंगे, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस तो बन जाएगा PQ, जब ये एरिया बहुत स्मॉल हो जाएगा इस तरह से तो बेस हमारे पास PQ आ जाएगा, और ये जो आपके पास OM होगा दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू PQ, ये पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होगा, ये जो अभी आपने ओ एम लिया ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर शो हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कहाँ पे है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी। तो ये किस पे लगेगा, ये लगेगा आपको ऐसे कि ये जो है बिल्कुल ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ क्यू के ऊपर, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो। क्योंकि जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पी और क्यू पॉइंट्स बहुत ही क्लोज हो जाएंगे और ये आपको जो ये वाला जो कर्व यहाँ पे कर्व टाइप लग रहा था ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये जो ओ एम ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड हो जाएगा, अल्टीट्यूड लगेगा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ फ्रॉम perpendicular from O to PQ. So this is the area of triangle POQ which is equal to sectorial area of POQ. So sectorial area is half, PQ is delta S, small change in S, and this is small p, perpendicular from O on the PQ. ठीक है, so this is area of POQ. So what is aerial velocity? Aerial velocity is rate of change of sectorial area with respect to time. So aerial velocity about O is limit delta t approaches 0. It is very small time t. Sectorial area POQ which is equal to this upon delta t. So this is what you get, limit delta t approaches 0, half p delta s upon delta t is ds by dt. What is ds by dt? ds by dt is taken to be linear velocity. So v is the linear velocity at point p. So aerial velocity is equal to half p into v. As we know that aerial velocity about any fixed point is constant and it will remain h by 2. So let us take this as equal to h by 2. So what will we get? 2 se 2 cancel. So we get a relation between v, h and p. So here v is inversely proportional to p, where p is the perpendicular drawn from O on the tangent which is drawn on the curve at any point p. So if the particle moves under a central force, then its velocity at any point p of its path varies inversely as the perpendicular from the center upon the tangent to the path at P. So when
how to find velocity when path is known. Clear? When path is known, we have v is equal to h upon p. So squaring both sides, it is h square upon p square. और हमें ये पता है या हमें ये लर्न करना है कि p अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं हम, पिडल कोऑर्डिनेट्स कहाँ से होता है, अगर ये आपके पास पार्टिकल है एट एनी पॉइंट p o और p पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड दिस इज द perpendicular distance from a point o on this tangent drawn at p, this is small p. तो इस small p इस रेडियस वेक्टर r और थीटा में क्या रिलेशन होता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू दी पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. This is the relation which we have to remember. So put the value of p square here, 1 by p square here, this is what you get, and put u as 1 by r. So जब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और पाथ गिवन है, पाथ गिवन मीन्स r और थीटा का कोई रिलेशन गिवन होगा, इक्वेशन गिवन होगी, तो हम वेलोसिटी इस इक्वेशन से निकालेंगे. और जब फोर्स गिवन होगा तब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सो जब फोर्स गिवन होगा तो हम वेलोसिटी निकालने के लिए यूज़ करेंगे पिडल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट. सो आपके पास हम इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज़ -1/2. इंटीग्रेट हम किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे p के विद रिस्पेक्ट. सो p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर -3 हो जाएगा. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, p रेज टू पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1. सो इट इज़ p टू द पावर -2 अपॉन -2. So this is what you get here, and here you will get integral f dr, and this is constant of integration. So whenever you have to find the velocity when the force is given to you, we will always use this relation. So आपने ये याद रखना है कि अगर आपको पाथ गिवन है तो हमने ये ऊपर वाला रिलेशन यूज़ करना है, दैट इज़ v इज इक्वल टू एच स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इन द ब्रैकेट u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. और जब आपको फोर्स गिवन है, लॉ ऑफ फोर्स गिवन है या फोर्स गिवन है, तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, v²/2 इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल एफ डी आर प्लस सी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.